जब तक आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही नहीं है, सो पास ईयर इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. It will help you, it give you the fair idea ki like how paper will be and how things will be in the paper. But if you think ki I do just 3 to 4 past years, it will not let you to qualify the exam. हमेशा हमारे दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि अगर हमारा जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ तो हम लाइफ में क्या करेंगे, हम करियर में क्या करेंगे. बट मैं सारे स्टूडेंट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पेपर आ रहे हैं, जिस तरीके से लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, इवन नेट क्वालिफाई करना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है. एंड अगर आपका किसी वजह से जेआरएफ नहीं क्लियर हुआ तो आपकी लाइफ खत्म नहीं होती है. यू शुड टेक इट पॉजिटिवली एंड यू शुड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. सो टुडे वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट. वी हैव मिस साक्षी गोयल. Through hard luck, I would say, she has missed her JRF by just 0.08 marks or percentile, you can say. She has scored 99.6 percentile and she has qualified net in commerce in the very first attempt. So congratulations, Sakshi, first of all. And I would just like to reiterate the same thing that this is just a hard luck for you. अगर आप मेहनत करते रहेंगे, you will have that positivity. You will go long places. Thank you, sir. Yeah, it's just hard luck because I missed it by a small difference. Right. So nevertheless, let's start the interview. And my first question is, please tell us about your educational qualification, what all you have done and everything. I have done BCom honors from Acharya Narendev College and I have just completed my MCom from BSc only. Okay, fantastic. So, Sakshi, when did you actually plan, कब आपके दिमाग में ये thought आया कि मुझे टीचिंग करियर में जाना है? Because usually क्या होता है कि जब कैंडिडेट्स इतने अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से होते हैं, लाइक फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे कॉर्पोरेट प्लेसमेंट बहुत अच्छी आती हैं, कंसल्टिंग की प्लेसमेंट बहुत अच्छी आती हैं. So, किस तरीके से आपको थॉट आया कि आपको टीचिंग में जाना चाहिए? Sir, actually at the time of graduation, that time I decided कि I want to be a teacher. So for a teacher, so that's why I aimed Delhi School of Economics. So I just focus on my teaching passion. I don't focus on like any corporate placement. Although I have given the interview, I have cleared but I am very sure कि like I have to do this NET JRF and I want to be a teacher ahead in my life. Fantastic. So basically you're trying to put ahead with your passion कि मेरा teaching passion है and that is why you want to go ahead with that. Yes, sir. Very good. Sakshi, now my next question is कि कितना time duration आपने दिया, कब आपने preparation start करी for this UGC NET exam? Sir, I started in January. So, but like in February, my college get open. So it was a great problem for me because traveling time. I'm from Faridabad. So I remember I used to study in metro that time. I have just like, let me complete my course at least for once. So I started my preparation then only. And after that, after my exams are over, I do revisions properly. So approximately अगर मैं टाइम लगाऊं तो कम से कम 9 से 10 महीने का आपने डेडिकेटेड टाइम दिया है for preparing for this UGC NET exam. Yes, sir. So what were the study materials or what were the sources that you have been referring to prepare for this exam? Sir, initially I think I will do self study, but later on I like after 10 to 15 days I think it will be very difficult. So I need some guidance. So I enrolled for this course and I prefer all the material that is available on the website. Okay, fantastic. साक्षी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंट इयर्स में आप देख रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज्यादा असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं. सो हाउ आर यू टैकलिंग दैट, या आपने कैसे टैकल किया उसको? Sir, उसके लिए I follow your advice that you used to give कि like अच्छे से रीड करो, पहले स्टेटमेंट 1 उसको चेक करो कि वो सही है या गलत है, और फिर उसके मन में सोचो कि उसका रीजन है या ये नहीं है. So I follow that advice. It helped me a lot. Fantastic. अब मुझे बार बार यही चीज लगती है कि हम तो एडवाइस देके चले जाते हैं स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स उसे फॉलो करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उसे सीरियसली नहीं लेते. बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट्स उन एडवाइस को फॉलो करते हैं, फॉर देम इट हैज एक्चुअली वर्कड आउट. सो थैंक यू फॉर फॉलोइंग दैट एडवाइस. साक्षी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये एक परसेप्शन बन गया है, आई वुड से इट इज अ परसेप्शन बिकॉज वो चला आ रहा है, ठीक है, कि अगर आप सिर्फ पास्ट ईयर्स लगा के चले जाओ तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा. डू यू बिलीव इन दिस? No sir, it's like impossible because जब तक आपको concept की clarity ही नहीं है, so past year it's not going to help. It will help you, it give you the fair idea कि like how paper will be and how things will be in the paper. But if you think कि I do just 3 to 4 past years, it will not let you to qualify the exam. Right. Unless and until you don't have clarity about the concept subject. Means the conceptual clarity has to be there. Yes, right. sir. Sakshi, now my next question is कि एक स्टूडेंट को ये भी एक चीज लगती है कि हम कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ें, ठीक है, स्पेसिफिकली पेपर 1 पेपर 2, और कितना टाइम डेडिकेट करें, बिकॉज सम टॉपिक्स माइट बी वेरी इजी फॉर यू, सम टॉपिक्स माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. तो स्पेसिफिकली पेपर 1 के लिए आपने कितना टाइम लगाया और पेपर 2 के लिए कितना टाइम लगाया?
So personally, I give more time to paper 2 because I think कि वहाँ मेरे ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो मैं ज़्यादा वहाँ करूँ. सेकेंड, लाइक बीइंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो इट वाज समथिंग जो मुझे पसंद था हमेशा से. तो इसलिए मैंने सबसे पहले पेपर 2 अपना ख़त्म किया. उसमें मुझे अप्रॉक्सिमेटली 3 से 4 महीने लग गए अच्छे से करने में. एंड पेपर 1 मेरा थोड़ा जल्दी हो गया था क्योंकि उसमें DI कॉम्प्रिहेंशन ये सब था. तो मेरे को उसमें अराउंड 1 से 1.5 महीना लगा था. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि 3 से 4 महीने की डेडिकेटेड तैयारी आपको देनी चाहिए अगर आप पेपर 2 कॉमर्स पे फोकस कर रहे हैं. यस सर. फैंटास्टिक. और ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर स्ट्रेंथ है वो आपकी, अगर आप कॉमर्स से ज्यादा एक्वेंटेड है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी सेक्शनल कट ऑफ कि पेपर 1 में ज्यादा स्कोर करना है या पेपर 2 में. यस सर. राइट. साक्षी, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या चैलेंजेस आए आपको, बिकॉज क्या हर स्टूडेंट को कोई ना कोई चैलेंजेस आएंगे, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए एंड आपने उसको कैसे टैकल किया? सर सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज यही था कि जो सब्जेक्ट थे ना बहुत ज़्यादा वास्ट थे एंड दे आर अनरिलेटेड और लाइक इफ आई गो फॉर मार्केटिंग एंड आई भी कुछ रिलेट नहीं करता. लाइक अगर मैंने सब्जेक्ट एक खत्म कर लिया अपना, तो मुझे ऐसा लगता था जब मैं दूसरा करने लगती थी कि यार आई लाइक मैं भूल गई शायद वो पुराना वाला. तो सबसे बड़ा मुझे दिक्कत यही लगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट था. बट जब मैंने रिवीजन करी, लाइक पहली रिवीजन में मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई, सेकंड में और बेटर हुई, थर्ड में और बेटर हुई. सो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि सिलेबस बहुत वास्ट था. बट जितने टाइम आप उसको रिवाइज करोगे उतना ही आपको बेटर क्लैरिटी होती जाएगी. आई थिंक मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है कि जब एक रिवीजन सेशन मैंने लिया था तो वहां स्टूडेंट से पूछा था कि सर कितने रिवीजन की जरूरत है, और मैंने ये बोल दिया था कि 3 रिवीजन करना जरूरी है बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली. बट मुझे पता नहीं था कि स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गोइंग टू फॉलो दैट. बट अब जब आपसे बात हो रही है आप बता रहे हैं कि 3 बार रिवीजन किया है, आई एम श्योर दैट रियली वर्कड आउट फॉर यू. यस सर. साक्षी, हाँ जी सर वो जो ग्राफ आपने एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट डिवीजन में आप आधा थोड़ा लाइक वो एक्चुअली सही था. ठीक है. हाँ, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक रिसर्च. तो आई थिंक जब रिसर्च के बेसिस पे हम कुछ काम करना शुरू करते हैं तो वो वर्कआउट कर जाता है एंड इट गिव्स अस द आउटपुट. फैंटास्टिक. साक्षी, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मॉक टेस्ट को लेके आपका क्या टेक है? मॉक टेस्ट कितने जरूरी हैं? आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे? सर अराउंड मैंने 15 से 17 मॉक टेस्ट लगाए थे. इसमें मॉक टेस्ट प्लस पास्ट ईयर दोनों थे. सर मैं मानती हूँ कि मॉक टेस्ट और पास्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपने वो नहीं करे तो आपने पढ़ लिया ठीक है, बट आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आएगा. आपको नहीं पता कि आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन कैसे करने हैं. तो अगर आप मॉक टेस्ट लोगे आपको पता है कि आपको क्या करना है. सेकेंड, आपको एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है कि आपके वीक पॉइंट्स हैं, कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप कहाँ मिस आउट कर रहे हो. You are absolutely right because मॉक टेस्ट में क्या है 3 घंटे हमें लगातार बैठ के एग्जाम देना होता है. और जैसे मैं पहले अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ कि हम मेंटर्स भी अगर एग्जाम देने जाते हैं तो हम क्या रियलाइज करते हैं कि 2 घंटे बाद, क्योंकि हमें प्रैक्टिस तो होती नहीं है मॉक टेस्ट बैठ के देने की, तो 2 घंटे बाद हमें भी मेंटल ब्लॉक आ जाता है. सो इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट, सर्टेनली आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू आएगा एंड आपको साथ साथ ये भी इशू आएगा कि आप कितने एफिशिएंटली और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सही कर सकें. सो आई थिंक मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है. 15-17 मॉक्स में आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी. नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब क्योंकि आपका नेट हो गया है कॉमर्स में, सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? सर माय फ्यूचर प्लान इज गो फॉर PhD because I'm very curious type of person. So I think I want to have more concept clarity, more dig myself into research. Then I want to go for teaching. Okay, all my good wishes, Sakshi. Now that brings me to the last question now. Ki what is going to be one advice that you would like to give to our future aspirants? सर वन एडवाइस कि बच्चे जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि टेक्स्ट, लीगल, लॉ, वो उसको जनरली सोचते हैं कि हम इन्हें छोड़ देंगे. बट वही सब्जेक्ट है जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं. तो मतलब कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए. यू हैव टू गिव इक्वल अटेंशन टू ऑल द सब्जेक्ट्स. मतलब ऑब्वियसली उनका सिलेबस कम है तो टाइम कम लगेगा उनके लिए. बस मेन पॉइंट यही है कि यू शुड कवर ऑल द सिलेबस. यू डोंट नो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने वाला है. आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज उन्होंने बताई कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना, बिकॉज दो यूजीसी नेट क्लेम करता है कि हम 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछते हैं, बट वो एक्चुअली उसे फॉलो नहीं करता. तो हो सकता है कि आप लीगल एस्पेक्ट छोड़ के जा रहे हो और उसी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. सो कांग्रेचुलेशन वंस अगेन साक्षी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द चैनल. And to all the students, I would just like to reiterate the same fact. Doesn't matter नेट क्वालिफाई हुआ, JRF हुआ, या हो सकता है नेट भी नहीं हुआ. अगर आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखेंगे और मेहनत करते रहेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे, यू विल गेट सक्सेस. तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद हुई है, थोड़ी सी भी मोटिवेशन हम दे पाए, साक्षी से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली है,
तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।